I welcome you on behalf of Government of Himachal Pradesh, Department of Higher Education. I am looking forward to work with you and hope that you will find the course both enjoyable and informative. Uh, this is the course which is known as Business Statistics and Mathematics. But before moving towards the particular course, first of all, I would like to throw some light on the BCom program structure. Being you are the student of the first year, first of all, you must have the knowledge regarding the program structure. Uh, this is a 3 year annual course which is divided into 3 years. So, in the first year, there are certain courses which are ability enhancement courses. Some courses are core courses. So, in this structure, in the program structure, you have to study the four courses uh, from the commerce background. One is financial accounting, another one is business organization and management, third one is that is business law, and fourth one is business mathematics and statistics. The course number is given to you like BC. BC means that is a BCom. 1.1 means that is first year, first course. BC 1.2 means BCom, first year, second course. On the same lines, the BC 1.4, that is BCom, first year, fourth course. And other four courses are, that is core courses and ability enhancement courses, that may be from the environmental study, Department of Environment Study, and Department of English. Now, if I would talk about the course which I am going to teach you, and the title of that is Business Statistics and Mathematics. Uh, as you know better, that every course is divided into two components. One is theoretical and another one is CCA. So theoretical part, that is of 70%, and 30% is depends upon your performance in the classes. That may be your attendance, the attemptation of the assignments, and your performance in the different house examination which are to be held at college level. So first of all, let us discuss the syllabi before moving to the syllabi. As you know that this course is divided into 5 units. The first unit is univariate analysis, in which we will discuss about the background of that statistics. Then another one is bivariate analysis, where the two component, two variables are there, and we have to discuss the correlation. Then if there is a correlation, then how we have to apply the linear regression analysis on that, and with the help of that we can predict more things. And the third unit comprises the index numbers, because practically we need how the index numbers are to be constructed. Then the time series analysis, from its name it is very clear, time series. It means whatever the data for the uh, previous years, on the basis of that, if we have to predict the things, then how it is possible. And the fifth component is that is a business mathematics. So this course is one is matrices and another one is that is basic mathematics of finance. Uh, the paper style in the end year examination, then from each and every unit, two questions would be asked, and then you have to attempt one question. But the first question is compulsory, which would cover all the units, that is, all the 5 units will be covered, and that question is compulsory. And for the rest of the 5 units, you have to attempt one question from each unit.
Uh, this is a scheme of business mathematics and statistics. And now if you will move, you can see the first unit, that is univariate analysis. The name of the topic is, that is Introduction to Statistics. Okay, in case of the Introduction to Statistics, so let us introduce myself. My name is Dhruv Pal Singh, and I am an associate professor in the subject of commerce, and associated with the government of Himachal Pradesh for the last 24 years. So first of all, what would be the contents which we will discuss? That is, what is statistics, descriptive and inferential statistics, variables and types of data, data collection and sampling techniques, observational and experimental studies. Dear students, I won't focus upon that you have to cram the things. No. We will try to clear your concepts, and that is also in the simple language. Because this is the subject which is very informative and which is very practical, and we generally use it in our daily life. So that's why we will try to discuss, and we will try to correlate it with the different circumstances or the events which occur in your surroundings. So what is the objective by the end of the chapter? As and when we will finish this chapter, you must have the knowledge of the statistical terms, because whenever we have to study any of the subject, first of all you must have the knowledge of the basic concepts, and which is generally to be called as the coding in the language of the computer, if I would say. जैसे आपने इंग्लिश में ABC सीखी है, हिंदी में क ख ग सीखा है, वैसे ही आपको स्टैटिस्टिक्स को समझने के लिए बहुत सारी टर्म्स ऐसी होंगी जिनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और अंडरस्टैंड करने के बाद ही आप, तो ये सारी बातें जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और वो भी सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमें पता है कि हिमाचल जैसे छोटे राज्य में स्टूडेंट्स की बैकग्राउंड, और अगर जब तक हम उसको कंसेप्ट को, कि जब तक हम उसको कंसेप्चुअल नॉलेज ना देंगे, तब तक उस एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। आप रट्टा लगा लें, रट्टा लगा के क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। एक आपने रट्टा लगाया, कोई एक लेमैन आपसे अगर किसी कंसेप्ट के बारे में पूछता है, तो यू वॉन्ट बी इन ए पोजिशन टू रिप्लाई द थिंग्स in the layman's language. So you must have the knowledge that you could translate it, that whatever you have grasped should be explained before a layman. So that should be my that would be my efforts, and I hope that you will also explain the things. So okay, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन राइज होता है कि ये स्टैटिस्टिक्स है क्या? ये देखिए, आप जब भी हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स को कहाँ सुनते होंगे? या तो आप रेडियो में सुनते हैं, टेलीविज़न में सुनते हैं, न्यूज़पेपर है, मैगज़ीन है। मैंने ये एग्जांपल इसलिए बताए क्योंकि जो कुछ लोग हैं जिनके पास टेलीविज़न नहीं है वो रेडियो सुनते होंगे, जिसके पास ना रेडियो है ना टेलीविज़न है वो अखबार पढ़ता होगा, और अगर वो अखबार में नहीं पढ़ता है तो वो मैगज़ीन पढ़ता होगा। इसलिए मैंने कोशिश करी है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इनमें से कोई ना कोई मोड जो है वो फॉलो करते होंगे। अब अगर आप न्यूज़पेपर की स्टेटमेंट्स, आपने देखा होगा कि आजकल कोविड-19 के से रिलेटेड बहुत सारी स्टेटमेंट्स, आपका भी इंटरेस्ट रहता है, आज कितने केसेस आए, कल कितने आए, कितनी डेथ हुई, कौन सी स्टेट में, हिमाचल में क्या हुआ, हिमाचल के कौन सी स्टेट डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ, और डिस्ट्रिक्ट से आप फिर विलेज की तरफ को मूव कर जाते हैं। तो ये जो आपका इंटरेस्ट है यही हेडलाइंस बन जाती हैं। आजकल तो सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सारे चैनल्स हैं। तो देखिए, अब हम कुछ एक फैक्ट्स आपको न्यूज़पेपर से लेकर के बताते हैं। कहता कि नेशनल सर्विस डोजर जो है, यानी कि जो कोर्ट के जो केसेस हैं, कोर्ट्स अब 11,864 नेशनल सर्विस डोजर्स हैं, उसमें से 2 जो हैं वो कोर्ट से बिलोंग करते हैं। चलिए, शायद आपको टफ लगेगा,
मैं और आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। हम कहते हैं कि 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंगली हिंदुस्तान में कितने लोग ऐसे हैं, कितने हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जिनके पास टू व्हीलर्स हैं। अच्छा, अब आपको लगता है, आप तो बोलेंगे जी हर घर में टू व्हीलर है। नहीं, हम कहते हैं 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंगली हमने माना कि 40.5 मिलियन हाउस होल्ड्स के पास टू व्हीलर है। उसके बाद मान लीजिए कि एक प्रोफेशनल फुट, देखिए दो तरह के प्लेयर्स होते हैं, कि एमेच्योर होते हैं, एक प्रोफेशनल। एमेच्योर होते हैं जो अपनी खुशी के लिए खेलते हैं, जो अब या आप स्कूल से आए हैं तो हो सकता है कि स्कूल में जो जितनी भी गेम्स आप खेलते आए वो सारी एमेच्योर थी। प्रोफेशनल होते हैं जो पैसे के लिए खेलते हैं, जैसे आपका आईपीएल है। उसी तरह से मान लीजिए कि एक 2019 में एक प्लेयर जो एक फुटबॉल खेलता है उसकी जो एवरेज सैलरी है 1 करोड़ 10 लाख के करीब है। उसी तरह से अगर आप बोले कि अब देखिए कि कोरोना में के केस में, जब से कोविड-19 आया है, तो शादियां, आपको पता है कि अब ये 10-20 लोग ही शादी में अटेंड कर पाते हैं। तो कहते हैं कि आप इस दौरान की एवरेज कॉस्ट बताइए कि एक शादी के ऊपर कितना खर्च हो रहा है। तो हमने कहा द एवरेज कॉस्ट ऑफ द वेडिंग इज नियरली 10,000 रुपीज। उसके बाद हम ये बोल रहे हैं कि अगर एक स्टूडेंट अगर एक बैचलर डिग्री कर लेता है, मान लीजिए बीकॉम कर लेता है, तो उसकी सैलरी का मीडियन क्या है। तो हमने कहा 49,982। अभी तक देखिए, अब आप, मैं जानबूझ करके मीडियन टर्म्स यूज किया है। क्यों किया, इसका मतलब आपको इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इस स्टेटमेंट को समझ पाएंगे और तभी आप एक लेमैन को उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। उसी तरह से अगर आप वुमेन हैं तो वुमेन की जो उसके पास भी अगर बीकॉम की डिग्री है तो वो कितना अर्न कर सकती है। इस तरह से ये डेटा जो है ये न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बन जाते हैं। अब हमने क्या कहा कि मार्च 1 से लेकर के 15 अप्रैल 2020 तक हमने एक सर्वे किया और उस सर्वे में ये पाया गया कि जितने भी लीजेस हुए, इसके एग्रीमेंट हुए, किराए पे देने के जो एग्रीमेंट्स हुए, वो जैगुआर के साथ हुए, जैगुआर एयरलाइंस के साथ हुए। उसके बाद है कि हमने कहा, एक और बात सामने आई कि जी जितनी भी लेडीज हैं, वुमेन है, अगर वो हफ्ते में एक बार फिश खाए तो हो सकता है कि उनकी जो हार्ट डिजीज है वो 29% से कम आ जाए। अब देखिए बहुत सारे फैक्ट्स हमने, चाहे वो सोशल हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हैं, चाहे आपके पास हाउस होल्ड से रिलेटेड है, उन सारे बातों को हमने यहाँ पे कहा। हमने नहीं कहा कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, हमने तो सिर्फ आपसे ये टर्म्स, ये स्टेटमेंट्स जो जनरली न्यूज़पेपर में होती हैं उसके बारे में हमने आपसे थोड़ी सी बात करी है। तो चलिए जी, अब ये स्टेटमेंट्स हैं, इसके ऊपर आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन राइज होता है कि ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये क्या हमारी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं, हमें पढ़ना चाहिए इसे कि नहीं पढ़ना चाहिए, कि वैसे ही हमें रट्टा मार करके आगे चल पड़ना चाहिए। नहीं, देखिए मैंने कहा कि आपकी सराउंडिंग में जो स्टैटिस्टिक्स है उसका यूज होता है। सो दैट्स व्हाई आई कैन कॉल इट एज स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स ऑफ ह्यूमन एंडीवर। अब आप स्पोर्ट्स में चलिए। अब आप क्या करते हैं, कई बार जो है क्रिकेट, बेसबॉल या फुटबॉल, अब आप बोलते हैं तेंदुलकर नंबर 1 है, आईपीएल में फलां प्लेयर जो है वो नंबर 1 चल रहा है। उसी तरह से जो स्टेटिस्टिशियन है स्पोर्ट्स में भी वो रिकॉर्ड्स अपने पास रखते हैं। अब चाहे वो फुटबॉल की गेम है, चाहे आपकी बेसबॉल की गेम है, चाहे आपकी क्रिकेट की गेम है, तो एक पार्टिकुलर सीजन में एक प्लेयर की परफॉर्मेंस कैसी है वो कैसे पता चलती है, उसके लिए हमें स्टैटिस्टिक्स का यूज करना पड़ता है। अब आप एक पब्लिक हेल्थ में चले जाइए। एक साल में, जैसे मैंने अभी आपको कहा, एक साल में कोविड-19 में, अभी साल का बाद तो आएगा, लेकिन अभी आजकल हम क्या कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, मैंने वर्ड यूज किया क्योंकि जब डिप्टी कमिश्नर है उसके पास डिस्ट्रिक्ट की कमांड है तो वो अपनी डिस्ट्रिक्ट की परफॉर्मेंस देता है कि मेरे एरिया में, मेरी ज्यूरिडिक्शन में टोटल पॉपुलेशन में से कितने लोगों को ये वायरस ने इसको अफेक्ट किया है, वो कांटेक्ट में आए हैं। उसी तरह से एजुकेशन है में आप लोग जो हैं, जैसे अब कोविड-19 आ गया तो ऑफलाइन जो आपकी टीचिंग थी
आप कैंपस में नहीं आ पा रहे हैं। तो एक रिसर्चर ये जानना चाहता है कि इस स्टेज के ऊपर नए मेथड्स टीचिंग के कैसे हो सकते हैं जो कि पुराने मेथड से आपका साल भी वेस्ट ना हो और आपको कंटेंट्स भी अच्छे से आ जाएं और आप ऑनेस्टी भी शो करें। तो एक रिसर्चर इसके लिए मेथड्स कलेक्ट करता है, उसको भी क्या चाहिए, एक स्टैटिस्टिक्स चाहिए। इसी तरह से आप जब हम एक सर्वे करते हैं तो उसका हम एनालिसिस करते हैं और उस जब उसका एनालिसिस करते हैं उसके लिए हमें साइंटिफिक रिसर्च के लिए करके डिसीजन करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको कंट्रोल कर सकें। तो इस तरह से क्या है कि यहाँ पे हमारे पास स्टैटिस्टिक्स का यूज हो रहा है। अब बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस हैं, रिसर्च ऑपरेशंस हैं। अब जैसे क्वालिटी कंट्रोल है। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब मान लीजिए कि आप 1 kg नेल्स लेते हैं, किले लेते हैं। अब आप देखते हैं कि उन नेल्स में से 2 या 3 किले जो हैं वो ख़राब निकल जाती हैं, किसी का टॉप नहीं होता, कोई शार्प नहीं होती। इस तरह से क्या है कि फैक्ट्री वाले क्या करते हैं, वो क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। वो क्या करते हैं, एक सैंपल लेते हैं, जैसे वो मैन्युफैक्चर हो रही है, सैंपल लेने के बाद वो देखते लेते हैं कि अच्छा 1,000 नेल्स में से कितनी नेल्स जो हैं वो ख़राब हो चल रही हैं। तो उन्होंने एक सेट फार्मूला रखा हुआ है कि अगर 1,000 में 5 से ज़्यादा मिलती हैं तो इसका मतलब कोई डिफेक्ट आ गया है। तो वो 5 की कैलकुलेशन करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, एक स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। उस तरह से अगर आप एस्टिमेट करना चाहते हैं, अब जैसे मान लीजिए कि कोविड-19 है, अभी एस्टिमेशन दिक्कत है, लेकिन फिर भी हम एक पास्ट का डेटा लेकर के फ्यूचर के बारे में हम इसकी प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि इसकी पीक कब आएगी, डाउनफॉल कब आएगा। उस तरह से अब हम एडवर्टीजमेंट के ऊपर कितनी सेल होगी, तो कितनी एडवर्टीजमेंट की जाए, कितनी सेल होगी, उसकी प्रिडिक्शन हम। तो ये सारी बातें जो हैं ये किसकी हेल्प से करेंगे, हम स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से करेंगे। तो बताइए, ये सारी बातें आपकी लाइफ से रिलेटेड हैं, आपकी सराउंडिंग्स में है। दैट्स व्हाई आई कैन कॉल इट एज स्टैटिस्टिक्स इज इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। अब क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाई यू शुड स्टडी स्टैटिस्टिक्स। ये तो था कि अब देखिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, नेचुरली आप स्टूडेंट हैं, उसी तरह से एक प्रोफेशनल है, तो वो क्या करना चाहता है कि जितनी भी स्टडीज हुई हैं उन स्टडीज की परफॉर्मेंस को उसके पार्टिकुलर फील्ड में अंडरस्टैंड करने के लिए क्या चाहिए उसको। अब अब जैसे मान लीजिए अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग को समझने के लिए आपकी अकाउंटिंग की वोकैबुलरी होनी चाहिए। उसी तरह से स्टैटिस्टिक्स में जब लोग रिसर्च कर रहे हैं, अब बहुत सारे कंट्रीज में जो इस टाइम रिसर्च चल रही है, वैक्सीन कैसे डेवलप हो, कौन सा मेथड फॉलो किया जाए, लॉकडाउन लगाया जाए, क्या किया जाए, आइसोलेशन कैसे की जाए, ये सारी बातें जो हैं वो एक जितने भी साइंटिस्ट लगे हैं वो अपने रिसर्च पेपर के थ्रू करते हैं। लेकिन उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको किसकी नॉलेज होनी चाहिए, जो सिंबल वो यूज़ कर रहे हैं, जो कंसेप्ट वो यूज़ कर रहे हैं, जो स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर वो यूज़ कर रहे हैं, जो टूल्स वो यूज़ कर रहे हैं, वो सर्वे जो वो किया जा रहे हैं, उसकी नॉलेज जब तक नहीं होगी तब तक आप उन स्टडीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको क्या पढ़नी चाहिए, स्टैटिस्टिक्स पढ़नी चाहिए। उसके बाद अब जब आप थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो फिर आप बड़े होने का मतलब, बड़े तो आप पहले मैच्योर हो जाएंगे, थोड़ा बीकॉम आगे के सब्जेक्ट बीकॉम कर लेंगे, तो फिर आप अपने अपनी फील्ड में जो है वो रिसर्च करेंगे। जब रिसर्च करेंगे तो उसके लिए आपको रिसर्च की बेसिक आनी चाहिए। अब बेसिक रिसर्च करने के लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट है उसको डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन करने के बाद एक्सपेरिमेंट को, उसके बाद आप डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, उस डेटा को कलेक्ट करके उसको एक समरी फॉर्म में कैसे लेंगे, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उसकी समरी बनाएंगे और फिर उसके बेस के ऊपर हम उसकी प्रेडिक्शन करेंगे, फॉरकास्ट करेंगे, जिसका हम फ्यूचर में यूज़ कर सकें। क्योंकि बिजनेस जो है किसके पर बेस चलता है, बिजनेस कभी भी प्रीवियस, बिजनेस हमेशा फ्यूचर पे चलता है कि फ्यूचर में जिसने प्रेडिक्ट कर लिया कि कल क्या होने वाला है, वही बिजनेसमैन सक्सेसफुल होगा। तो इसलिए उसके लिए वो सर्वे करवाता है। जब वो सर्वे कराता है तो उसको सर्वे कराने के लिए जो आप जैसे लोग जो हैं वो उनकी हेल्प करते हैं बाय कंडक्टिंग द डिफरेंट रिसर्चेस। तो अब बताइए, अब आप तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद है कि चाहे आप स्टूडेंट हैं चाहे प्रोफेशनल पीपल हैं, आप एक बेटर, अगर मान लीजिए कि आप रिसर्च भी नहीं करना चाहते तो तब भी आप एक बेटर कंज्यूमर और सिटीजन तो बनना चाहते होंगे। तो उसके लिए भी क्या है, आपको इंटेलिजेंट डिसीजन करने होते हैं। जब आप मार्केट में जाते हो तो मार्केट में आप चाहते हैं कि मुझे बेस्ट प्रोडक्ट लोअर प्राइस के, ऑप्टिमम प्राइस के ऊपर मिले। तो उस टाइम आप क्या करते हैं, बहुत सारी शॉप्स में जाकर के सर्वे करते हैं, फिर इंटेलिजेंटली डिसीजन करते हैं बिफोर द परचेजिंग ऑफ दैट गुड्स। तो इसलिए
जब गवर्नमेंट भी अपने पैसा खर्च करती है, स्पेंडिंग करती है, यूटिलाइजेशन करती है, तो उसकी स्टडीज करवाती है। तो वो क्यों करवाती है? क्योंकि उसने इंटेलिजेंट डिसीजन लिया। और डिसीजन कहाँ होते हैं? जहाँ डिसीजन वहीं होते हैं जहाँ पे ऑप्शंस होती हैं। जहाँ ऑप्शन नहीं होगी, जहाँ 3 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से आपको एक एक चूज करनी है, तो उसके लिए आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो डिसीजन वहीं होते हैं जहाँ पे आपके पास एक आइटम है, वहाँ पे आप अल्टरनेट नहीं है, तो वहाँ पे डिसीजन मेकिंग नहीं होती। तो अब जब हमारे पास ये बात क्लियर होगी कि हमें स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़नी चाहिए, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे प्रोफेशनल हैं, चाहे आप एक लेमैन हैं, तो अब क्वेश्चन राइज होता है कि स्टैटिस्टिक्स होती क्या है। देखिए, स्टैटिस्टिक्स में अब अगर मैं कहूँ कि जो मैंने अभी तक डिस्कस किया कि स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ कंडक्टिंग स्टडीज टू कलेक्ट, organize, summarize, analyze, present, interpret and draw the conclusion from data। अच्छा, अब क्वेश्चन राइज होता है, ये तो मैं आपसे थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ, ये डेटा क्या चीज़ होती है। अब बोलने को तो बोलते हैं अच्छा डेटा, लेकिन डेटा को डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है। डेटा होता है एनी वैल्यू, और वो वैल्यू कौन सी? या तो आप ऑब्जर्व करें या उसको मैशर करें, दैट हैव बीन कलेक्टेड। ओके, अब ऑब्जर्वेशन। जब ऑब्जर्वेशन की बात क्या है कि जब आप एक जगह पे बैठ करके किसी केस स्टडी को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अब मान लीजिए कि एक अभी अभी आप कोई भी थीफ है या कोई डकैती हो जाती है, तो जब पुलिस वहां जाती है तो वो क्या करती है? सिचुएशन को ऑब्जर्व करती है, ना कि मैशर करती है। उसी तरह से अगर मान लीजिए आप, दूसरा मैंने वैल्यू क्या हो सकती है? मेजरमेंट। अब मेजरमेंट में क्या है? अब तो यू कैन मेजर कि अच्छा जी ये कार की लंबाई इतनी है, कार की चौड़ाई इतनी है, एक पर्सन है उसकी हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है, दिस इज मेजरेबल। और तो कुछ एक आइटम्स होती हैं, अब आप मान लीजिए ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी कैन बी मेजर्ड? नो, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड ओनली। तो इस तरह से क्या है कि जब आप ब्यूटी है, ब्यूटी को क्या आप मेजर कर सकते हैं? नहीं, ऑब्जर्व करेंगे फिर मेजर करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से क्या है कि कोई भी वैल्यू, चाहे वो आपने उसको ऑब्जर्व किया, चाहे उसको मेजर किया, जिसको आपने कलेक्ट करके, उसी को हम डेटा बोलते हैं। अब अगर आप ये डायग्राम देखें तो यहाँ पे क्या है कि ये एक रो डेटा है। रॉ डेटा का मतलब है कि मैंने मान लीजिए कि एक जगह लिखा था परसेंटेज लिखा था, एक जगह पे 2 लिखा था, एक जगह 100 लिखा था, एक जगह पे कोई फिगर लिखी थी। इसका कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन अगर मैं इन सब वैल्यूज़ को क्या करूं? कलेक्ट करके उसको ऑर्गेनाइज करूं। और ऑर्गेनाइज का मतलब जैसे 100 के साथ कि मैं 2 लगा दूं तो 2%, उसके बाद मैं SBI लिख देता हूं, तो इसका मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर मैं 1000 रुपीज़ लिख देता हूँ। अब इन सबको अगर मैं एक लाइन में लिख देता हूँ कि द बैंक इज गोइंग टू चार्ज 2% एज ए रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड द पर्सन इज इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट ₹1000। तो बताइए अब आपने क्या किया? जो डेटा आपने कलेक्ट किया था उसको ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइज करके उसको समराइज किया, और समराइज करने के बाद उसको एनालाइज किया, और एनालाइज करने के बाद अब ये वो क्या बन गई? आपकी एक इंफॉर्मेशन बन गई। तो मैं स्टेजेस आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या होता है? रॉ डेटा। रॉ डेटा को आप, रॉ डेटा किस में कन्वर्ट हो जाता है? इंफॉर्मेशन में, जब उसको आप ऑर्गेनाइज करते हैं। और इंफॉर्मेशन जो है वो क्या बन जाती है? फिर नॉलेज बन जाती है, और नॉलेज के बाद क्या आ जाती है? विजडम आ जाती है। लेकिन उसके लिए सबसे बेस क्या बात है? डेटा है। और डेटा क्या हुआ? वैल्यू हुई। और वैल्यू कौन सी हुई? जो हमने ऑब्जर्व करी या मैशर करी। तो मुझे लगता है कि अब स्टैटिस्टिक्स का क्लियर हो गया होगा। ओके, अब अब जो इसके पीछे का जो आइडिया है कि ये जो स्टैटिस्टिकल मेथड हम यूज़ करते हैं डाटा के एनालिसिस करने के लिए, वो क्यों करते हैं? देखिए, एक सेंसिस मेथड होता है। सेंसिस मेथड का मतलब होता है, अब आपने सुना होगा कि 10 साल के बाद जो है वो अब गवर्नमेंट जो है वो सेंसिस कलेक्ट करने जा रही है, लोगों की सेंसिस में ड्यूटीज़ लगनी शुरू हो गई। तो वो क्या करते हैं? लोग आपके घर जाते हैं और घर में जा करके बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं और वो डेटा जो है कलेक्ट करते हैं। तो हर एक परिवार के पास जा करके गवर्नमेंट को वर्क फोर्स लगानी पड़ती है, मनी लगाना पड़ता है, टाइम लगाना पड़ता है, और वो सारा डेटा कलेक्ट करता है। तो सबसे कॉस्टली आइटम है। अगर बिजनेसमैन भी ऐसा करना शुरू कर दे तब तो वो बिजनेस रन नहीं कर सकता। तो फिर हमें मुझे क्या करना चाहिए? अरे भाई, मुझे क्या करना है कि पूरी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं करनी है,
उस पॉपुलेशन में से मुझे कुछ एक आइटम्स के ऊपर स्टडी करके कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करके दोबारा से उनको पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई करना है। बस यही हमारा एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जो एक डाटा एनालिसिस का यूज़ करता है। जैसे मान लीजिए जब आपके राइस पकते हैं तो आप क्या करते हैं, एक एक राइस को देखते हैं, तब तो बहुत मुश्किल है आप कि भाई एक राइस पक गया एक नहीं पका, तो आप क्या करते हैं उसमें से कुछ एक चावल लेते हैं और देखते हैं कि चावल पक गए, उसी के ऊपर आप ये कंक्लूजन ड्रॉ कर देते हैं कि जी चावल पक चुके हैं। अब आप किसी शॉप में जाते हैं तो शॉप में जाकर के एक शुगर है मान लीजिए वहाँ पे, तो आप क्या करते हैं एक मुट्ठी भर शुगर उठाते हैं और उसमें से देखते हैं अच्छा वाह ये तो शुगर अच्छी है। तो इसका मतलब आप पूरे बैग में ना इन्वॉल्व ना होकर के आप एक छोटा सा एक सैंपल उठा करके आप उसी के ऊपर पूरे जो बैग है आपका 50 kg का जो बैग है उसी के बारे में कंक्लूजन ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो पूरी 50 kg की जो शुगर की एक बैग है उसको मैं पॉपुलेशन बोलूँगा। उसमें से आपने अगर 50 ग्राम शुगर आपने ले रखी है, ठीक है, तो उसको मैं सैंपल बोलूँगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब मैं थोड़ी सी टर्म जिसको मैं कोडिंग बोलता हूँ एबीसी जो है स्टैट की, उसके बारे में बात करता हूँ थोड़ी सी। तो यहाँ देखिए पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या नहीं है, आप ये ध्यान रखना। अभी तक आपने जो पॉपुलेशन पढ़ा होगा उसका मतलब जनसंख्या नहीं। पॉपुलेशन का मतलब होता है कंप्लीट कलेक्शन ऑफ मेजरमेंट। जैसे मान लीजिए कि अगर आप पूरे हिंदुस्तान के ऑटोमोबाइल के ऊपर स्टडी कर रहे हो तो हिंदुस्तान में जितनी भी ऑटोमोबाइल्स हैं, चाहे 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, 6 व्हीलर है, 10 व्हीलर्स हैं, ऑल आर टू बी कवर्ड अंडर द वर्ड पॉपुलेशन। ठीक है जी। अगर आप मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर एक स्टडी करना चाहते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पूरे इंडिया में कितनी ब्रांचेज हैं वो सारी क्या बन जाएंगी, पॉपुलेशन बन जाएंगी। बात क्लियर हो गई जी। पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन का मतलब होता है कंप्लीट कलेक्शन ऑफ मेजरमेंट ऑफ आउटकम्स। अगर आप मान लीजिए आप ये स्टडी करना चाहते हैं कि सिर्फ हिमाचल प्रदेश के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो आपके लिए जो पॉपुलेशन है अब वर्ल्ड नहीं, इंडिया नहीं, अब आपका सिर्फ हिमाचल प्रदेश में कितनी ब्रांचेज हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, वो सारी आपकी पॉपुलेशन बन गई। एक पॉपुलेशन, एक नंबर जो पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करता है उसको हम पैरामीटर बोलते हैं। बात क्लियर होगी जी यहाँ पे। अच्छा, अगर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर मैं एक 2 व्हीलर की बात कर रहा हूँ तो मैं 2 व्हीलर में कौन सा ले रहा हूँ, स्कूटर ले रहा हूँ, बाइक ले रहा हूँ, कौन सा ले रहा हूँ, वो नंबर जो है उसको हम पैरामीटर बोलते हैं। अब जो पॉपुलेशन है वो दो तरह की है, एक टेंजिबल होती है, एक कंसेप्चुअल होती है, जो अभी मैंने आपसे पहले भी बात करी। टेंजिबल फाइनेट नंबर होती है, population size decreases by 1, total number of members is fixed and could be listed, तो 1 2 3 4। कंसेप्चुअल जिसमें क्या होगा, जिसको हम ऑब्जर्व करेंगे और जिसकी अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट जिसको बोल सकते हैं। तो मैंने कहा आपसे ऑनेस्टी, अब ऑनेस्टी को मेजर थोड़ी करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, सिचुएशन वुड बी ऑब्जर्व्ड। अब आपके बाद क्या है, क्लाइमेट है, क्लाइमेट को आप क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर आप ये बोलते हैं कि अच्छा इट्स हॉट टुडे एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ रेन विद इन 1 आवर। तो एक मैंने पॉपुलेशन की जो करेक्टरिस्टिक को बताता है उसको हम पैरामीटर बोलते हैं, और पॉपुलेशंस का एक छोटा पार्ट उसको हम सैंपल बोलते हैं, जो पॉपुलेशन का सबसेट होता है, और उस सैंपल की जो करेक्टरिस्टिक बताता है उसको हम स्टैटिस्टिक बोलते हैं। तो ए नंबर दैट डिस्क्राइब ए सैंपल करेक्टरिस्टिक दैट इज टू बी नोन हियर एज स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक्स नहीं, स्टैटिस्टिक। तो मैंने 4 बातें बताई, पॉपुलेशन का सब पार्ट बन गया सैंपल, और पॉपुलेशन की जो करेक्टरिस्टिक्स को मेजर करता है उसको पैरामीटर बोलते हैं, और जो सैंपल के करेक्टरिस्टिक को मेजर करता है उसको स्टैटिस्टिक बोलते हैं। अब 2 तरह की स्टैटिस्टिक्स हैं, एक है डिस्क्रिप्टिव, एक इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है, अब आपको बोला जाता है डिस्क्राइब द थिंग्स, डिस्क्राइब, अब डिस्क्राइब ए पर्सन, तो आप क्या बोलते हैं, डिस्क्राइब ए पर्सन, उसकी हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है, उसकी आइज़ कैसी हैं, उसका नोज़ कैसा है, उसकी शेप कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका वेट कैसा है, ये सारी बातें क्या होती हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती हैं। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब है जहाँ पे आप डेटा को कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं, और फिर उस डेटा को आप प्रेजेंट करते हैं। कहाँ से लेते हैं, लेकिन सैंपल से लेते हैं। देखिए भाई बिजनेस में क्या होता है, अगर आप 50 पैसे लेकर के 5 लाख रुपए अर्न नहीं करेंगे तो उसको हम बिजनेस नहीं बोलेंगे।
तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं कि पूरी स्टडी ना करके एक छोटा सा पार्ट के ऊपर स्टडी करके उसके लिए कंक्लूजन जो ड्रॉ करते हैं वो पूरी पॉपुलेशन के लिए करते हैं। तो इस तरह से क्या है कि हम उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, एक इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का मतलब है कि आप क्या करेंगे, पहले पॉपुलेशन, यानी कि कितना पॉपुलेशन, कितने टोटल यूनिट्स हैं उसमें, उसमें से आप एक हाइपोथेसिस लेते हैं। दो तरह के क्वेश्चन करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोरिलेशन है, कोरिलेशन नहीं है, दो क्वेश्चन है। अब जब दो क्वेश्चन है तो उनके बीच में रिलेशनशिप मेजर करने की कोशिश करते हैं। फिर हम उसके ऊपर स्टडी करते हैं, स्टडी करने के बाद उसका कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, और कंक्लूजन ड्रॉ करने के बाद पूरी पॉपुलेशन के ऊपर उसको अप्लाई कर देते हैं। तो उसको बोलते हैं हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। यानी कि कुछ सैंपल लेकर के जब हम पॉपुलेशन के बारे में कोई कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं तो दैट इज टू बी कॉल्ड हियर एज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। दिस इज रिलेटेड टू द फ्यूचर। और जो डिस्क्रिप्टिव है वो जो ऑलरेडी है, पास्ट से रिलेटेड। अब देखिए आप एक डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के बारे में इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। आप डाटा कलेक्ट करेंगे तो स्टार्ट करेंगे, फिर डेटा, कोई भी आइडिया आपके पास आया, उस स्टार्ट पॉइंट आ गया, फिर आप डेटा गैदर करेंगे, फिर क्लासिफिकेशन करेंगे, उसकी समरी बनाएंगे, प्रोसेस करेंगे, फिर उसकी प्रेजेंटेशन करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने ली है ये सैंपल से ली है कि नहीं ली है। अगर नहीं ली है तो इसका मतलब मैं पूरी सेंसिस मेथड फॉलो कर रहा हूँ, यानी कि सारी ऑटोमोबाइल, जैसे मैंने कहा ऑटोमोबाइल की अगर मैं स्टडी करता हूँ, तो ये सारी बातें किस में आएंगी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में। लेकिन अगर आपने इंफॉर्मेशन सैंपल से लिया है और उस सैंपल इंफॉर्मेशन से पॉपुलेशन के बारे में एक कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया है तो उसको हम स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस कहते हैं। अब जैसे अभी मैंने एक स्टेटमेंट आपको बताई थी कि अगर एक लेडी एक हफ्ते में एक बार अगर फिश खाती है तो उसको हार्ट की डिजीज जो है वो के होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो क्या मैंने पूरे वर्ल्ड की या पूरे इंडिया की लेडीज के ऊपर ये स्टडी करी? नहीं करी। इसको मैंने कुछ एक पार्ट के ऊपर स्टडी करी, लेकिन उसी को मैंने क्या कर दिया, पूरे जितनी भी वुमेन है इंडिया में उनके ऊपर उसको अप्लाई करके एक कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया। तो उसको हम क्या बोलूंगा मैं, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। अच्छा, अब क्या है कि जब भी आपको डेटा कलेक्ट करना है तो आपको पता होना चाहिए वेरिएबल्स के बारे में। तो इसका मतलब है कि जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं तो उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए हम आपको वेरिएबल की नॉलेज होना जरूरी है। तो व्हाट इज वेरिएबल? देखिए वेरिएबल क्या होती है, एक करेक्टरिस्टिक होती है, एक एट्रीब्यूट होता है। देखिए दो, अब मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ, करेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट। जब डेटा क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव नहीं, जिसको विच कैन नॉट बी मेजर्ड, विच कैन बी ऑब्जर्व्ड, तो वहां पे हम वर्ड यूज करेंगे एट्रीब्यूट। क्लियर है जी बात? और कुछ एक करेक्टरिस्टिक्स ऐसी होंगी जहां पे हम एक दूसरे का रिलेशनशिप देख सकते हैं, वो नंबर्स में होगी। ठीक है जी। तो यहां पे क्या है कि जब हमारे पास एक वैल्यू चेंज होता है तो दूसरे वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। जैसे जब आप बचपन में, जब आप 1 साल के थे तो आपका वेट कितना था, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती गई आपका वेट भी क्या होता रहा, वेरी करता रहा। तो क्या हुआ, ये मेरे पास दो वेरिएबल आ गए और उन दो वेरिएबल की वैल्यू एक वैल्यू में चेंज होने से दूसरी वैल्यू में ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। तो वेरिएबल का मतलब होता है वेरिएबल्स हुज वैल्यूज आर डिटरमाइंड बाय चांस आर कॉल्ड रैंडम वेरिएबल। रैंडम का मतलब क्या हुआ, जैसे अभी आपको क्या करते हैं कि लॉटरी सिस्टम है, लॉटरी सिस्टम में आपको बोला जाता है कि ये लो जी, इस बैग में जो है वो 10 बॉल्स हैं, आप कोई भी दो निकाल लीजिएगा। तो आप क्या करते हैं, आंखें बंद करते हैं, दो निकाल लेते हैं, क्या हुआ? तो वेरिएबल्स हुज वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय चांस, चाहे वो लॉटरी सिस्टम भी हो सकता है। तो एक, अब थोड़ा सा अगर हम जो अभी तक हमने पढ़ा उसको रिवाइज करें तो डेटा आर आल्सो द वैल्यूज दैट ए वेरिएबल कैन अज्यूम। ए डेटा सेट इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज और ईच वैल्यू इन द डेटा इज कॉल्ड ए डेटा वैल्यू। अब वेरिएबल्स दो तरह के होते हैं, मैंने अभी आपसे बताया, एक क्वांटिटेटिव होता है, एक क्वालिटेटिव होता है। अब हमें इन दो बातों के ऊपर स्टडी करना है, एक क्वांटिटेटिव एक क्वालिटेटिव, और वो उसको हमने कैटेगराइज करना होता है। और कैटेगराइज में लेवल ऑफ मेजरमेंट ऑफ डेटा। देखिए लेवल ऑफ मेजरमेंट ऑफ डेटा आपको तभी आएगा, लोग जो हैं वो जब एमफिल पीएचडी में रिसर्च में जाते हैं तब जाकर के उनको रियलाइज होता है कि ओहो, मुझे तो लेवल ऑफ मेजरमेंट ऑफ डेटा ही नहीं आता,
तो मैं अब जो डेटा मैंने कलेक्ट किया है रिसर्च के लिए, उसकी मैं एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन कैसे करूं, कौन सा टूल लगाऊं, क्योंकि आजकल सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं, लेकिन उस सॉफ्टवेयर में जब तक आपको इसकी बेसिक एबीसीडी कोडिंग नहीं आएगी तब तक आप इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। तो मैं ये इसलिए यहाँ पे इंक्लूड किया क्योंकि हमारे सिलेबस में तो हो सकता है क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव है, लेकिन ये चीज़ मैंने इसलिए की कि लेटर ऑन कोई आपको ये ना बोले कि जी स्टैटिस्टिक्स पढ़ने के बाद आपको लेवल ऑफ मेजरमेंट ऑफ डेटा का ही पता नहीं है तो टूल कैसे अप्लाई करेंगे। तो आज ये पहले सबसे पहले क्वालिटेटिव डेटा, मैंने कहा कि डेटा दैट रेफर्स ओनली नेम क्लासिफिकेशन। फिर हम उसके बाद उसको हम नंबर देते हैं। जैसे मान लीजिए अब आप ये तो नहीं बोल सकते कि मेल फीमेल क्या हुआ जी, क्वालिटेटिव हुआ, एट्रीब्यूट्स हुआ, रेस हो गया, मेल रेस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, को नंबरिंग है नहीं है। सिटीजनशिप है, आप इंडिया के सिटीजन हो, पाकिस्तान के सिटीजन हो, अमेरिका के सिटीजन हो, बांग्लादेश के सिटीजन हो, चाइना के सिटीजन हो, किसके हो। तो अब हम क्या करते हैं कि जब मेल और फीमेल है तो कंप्यूटर मेल और फीमेल थोड़ी उठाएगा, तो वहां पे हमें फिर क्या करना पड़ता है, उसका कोडिंग करनी पड़ती है, तो नंबर देना पड़ता है। तो हम कई बार मेल को 1 देते हैं और फीमेल को 2 देते हैं। कंप्यूटर 1 और 2 स्टडी कर फिर हम उसको इनकोड करते हैं। ठीक है जी, तो उसको बोलते हैं हम क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। अब तो शायद क्लियर हो गया होगा। क्वांटिटेटिव, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, नंबर्स में काउंट कर सकते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब अब उसके बाद क्या है, अब जब क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल डाटा आपके पास आ गया तो अब आप ये बोल सकते हैं, क्या कैसे बोल सकते हैं कि अच्छा जी इस क्लास में कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, या कितने स्टूडेंट्स हैं, तो कितने रोल नंबर्स हैं। ठीक है जी, लेकिन क्वांटिटेटिव में दो तरह के डेटा होंगे, एक डिस्क्रीट वेरिएबल होता है, एक कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट का मतलब है 1 2 3 4 5 जिसमें गैप होता है। जैसे अगर अब मैं आपको बोलूं कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, तो आप बोलेंगे जी 4 मेंबर हैं, 5 मेंबर। आप ये तो नहीं बोलेंगे जी 2.5 मेंबर हैं, कि जी एक बच्चा है, ऐसा तो नहीं बोलते ना आप। तो उसमें गैप होता है, लेकिन कंटिन्यूअस वेरिएबल में गैप नहीं होता। अब आप, अगर मैं ये आपको बोलूं कि इस टायर में कितनी कितनी हवा है, तो ऐसा तो नहीं होगा 3 से बाद सीधा 4 जाएगा, 4 के साथ 5 जाएगा, नहीं होगा ना। अब जैसे मैं वेट बोलूं, चलो अब अगर उसको टायर को रहने देते हैं, वेट की तरफ बात करते हैं। अब आपका वेट ये तो नहीं है कि 48 केजी होगा या 49 केजी होगा, तो आपका वेट क्या होगा, 48 केजी 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 100 ग्राम, 500 ग्राम, 700, 900। ठीक है जी। तो अब क्या हुआ, इसमें कोई गैप नहीं है, कंटिन्यूअस है ना, तो उसको हम कंटिन्यूअस वेरिएबल बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल को आप जब फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला में आपको पता होना चाहिए कि ये डिस्क्रीट है, ये कंटिन्यूअस है। आगे छोटी छोटी असाइनमेंट्स हैं जो आपको सॉल्व करके मुझे भेजनी होंगी, तो उसको बोलते हैं हम कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। तो जैसे वेट है, वेट में क्या है, कंटिन्यूअसली है। एज है, एज में क्या बोलेंगे आप, 4 साल 1 दिन, 4 साल 2 दिन, 4 साल 3 दिन, 4 साल 4 दिन, ऐसे बोलेंगे ना। उसी तरह से सैलरी है, सैलरी में क्या बोलेंगे, 1,000 रुपये 1 पैसा, 1,000 रुपये 2 पैसे, 3 पैसे, 4 पैसे, कोई हाई नहीं। उसी तरह से हाइट है, उसी तरह से आपका टेम्परेचर है। लेकिन जब आप ये बोलते हैं कि आपकी जो व्हीकल है वो कितने सीटर है, तो आप बोलते हैं 3 सीटर 4 सीटर, ये तो नहीं बोलते 3.5 सीटर 2 एंड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल बोलते हैं। तो मुझे लगता है डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में भी आपका डिफरेंस नजर आ गया होगा। अब क्वालिटेटिव डाटा में जो है, जो मैंने लेवल ऑफ मेजरमेंट है, थोड़ी थोड़ी बात यहाँ करूँगा। एक होता है नॉमिनल डाटा। नॉमिनल डाटा डेटा उसमें है जिसमें हम क्लासिफिकेशन तो कर सकते हैं लेकिन रैंकिंग नहीं कर सकते। जैसे जेंडर है, मेल फीमेल। रेस में आप बोल सकते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये बोल सकते हैं। उस तरह से सिटीजन, क्योंकि एक आदमी 2 जगह पे सिटीजन नहीं हो सकता। ऑर्डिनल का मतलब होता है जहाँ पे क्लासिफिकेशन तो कर सकते हैं लेकिन साथ में रैंकिंग भी कर सकते हैं। कैसे, अब जैसे आपकी फीलिंग्स हैं, अब हम पूछते हैं कि हाउ यू आर फीलिंग, तो आप क्या बोलते हैं, कभी बोलते हैं गुड बोलते हैं, कभी आप बेटर बोलते हैं, कभी आप बेस्ट बोलते हैं, तो क्या रैंकिंग होगी कि नहीं। अब आप कलर है, कलर को आप क्या बोल सकते हैं कि जी डार्क है, ब्राइट है, लाइट है, तो क्या हुआ, साथ साथ में रैंकिंग भी कर रहे हैं ना अब आप। तो क्वालिटेटिव में 2 तरह के डेटा, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। जहां आप रैंकिंग नहीं कर सकते, जहां पे 1 2 3 4 नहीं कर सकते, उसको हम नॉमिनल बोलेंगे। जहां कर सकते हैं उसको हम ऑर्डिनल डेटा बोलेंगे।
अब आपके पास ये मैंने असाइनमेंट दी है, अब आपने इसमें से ढूंढना है कि कौन सा एट्रीब्यूट है, कौन सा न्यूमेरिक डेटा है, और कौन सा डिस्क्रीट है, और कौन सा कंटिन्यूअस डेटा। ठीक है जी। तो व्हाट इज द वेट ऑफ योर कार, इन वट सिटी वॉज योर कार मेड, हाउ मेनी पीपल कैन बी सीटेड इन योर कार। आपने बताता है मुझे कि एट्रीब्यूट है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, डिस्क्रीट है, या कंटिन्यूअस है। सोच समझ करके आपने इसका मुझे रिप्लाई देना है। ठीक है जी। ये आ गया। अब लेवल ऑफ मेजरमेंट डेटा को मैं दोबारा से, अगर वहां समझ नहीं आई तो यहाँ पे पहला लेवल होता है जी, सबसे बेसिक लेवल होता है नॉमिनल लेवल। तो मैंने कहा कि एमफिल पीएचडी में जब तक आपको इसकी नॉलेज नहीं होगी तब तक आप कोई भी टूल नहीं लगा सकते। नॉमिनल का मतलब है क्लासिफाई डाटा इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब जैसे मैंने क्या बताया, हिंदू मुस्लिम सिख। अब बताओ, जो हिंदू होगा वो हिंदू ही होगा, मुस्लिम नहीं हो सकता। जो मुस्लिम हो वो हिंदू नहीं हो सकता। तो ओवरलैपिंग नहीं हुई ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम, नॉमिनल। मेल है फीमेल है, ये तो नहीं बोल सकते कि मेल, जो मेल है वो फीमेल नहीं होगा, जो फीमेल है वो मेल नहीं होगा। उस तरह से आपके पास क्या है, ऑर्डिनल लेवल है। हम डाटा को अभी नॉमिनल से अगली स्टेज है, हम डाटा को क्लासीफाई तो कर सकते हैं लेकिन साथ में उसकी रैंकिंग भी कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करी। उसके बाद हम थर्ड कैटेगरी, जहाँ जो नॉमिनल है और साथ में रैंकिंग भी कर सकते हैं, ऑर्डिनल बन गया। उसकी थर्ड स्टेज आते हैं इंटरवल लेवल डेटा, जहाँ रैंक भी कर सकते हैं लेकिन डिफरेंसेस भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो जीरो होगी वो मीनिंगफुल नहीं होगी। अब जीरो मीनिंगफुल का मतलब क्या हुआ, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। अब आप क्या बोलते हैं कि जी टेम्परेचर कितना है, आप बोलते हैं 30 डिग्री। फिर आप बोलते हैं टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री। फिर आप टेम्परेचर बोलते हैं -2 डिग्री। तो क्या हुआ, जीरो के ऊपर क्या हुआ, टेम्परेचर खत्म हो गया। अरे नहीं, टेम्परेचर तो है ना, तो इसका मतलब जीरो इज मीनिंगलेस, -1 मीनिंगलेस। हाँ, गर्म है, सरद है, वो तो बोल सकते हैं, लेकिन जीरो का मतलब नहीं है। अब जैसे मान लीजिए, अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास 10 रुपए हैं, तो इसका मतलब, लेकिन अगर आपको मैं बोलूं जीरो है, तो इसका मतलब आपकी पॉकेट में कुछ नहीं है। तो उस तरह से क्लाइमेट तो होगा। तो ये क्लाइमेट के केस में आप, अगर आप बोलें कि जीरो क्लाइमेट है, क्लाइमेट का टेम्परेचर जीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जीरो इज मीनिंगलेस। अरे टेम्परेचर है, ऐसा तो नहीं है कि टेम्परेचर नहीं होगा। ये मनी थोड़ी नहीं है कि जीरो है तो नहीं है 1 है तो है। तो जहां पे नॉमिनल ऑर्डिनल है लेकिन इंटरवल लेवल डेटा है और जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता, उसको हम इंटरवल लेवल डेटा बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है रेशो। रेशो का मतलब होता है जब आपके पास 2 या 3 तरह का डेटा है और उसके बीच में आप एक रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं, तो उसी को हम रेशो लेवल डेटा। तो नॉमिनल के बाद ऑर्डिनल, ऑर्डिनल के बाद जब आपके पास इंटरवल आ गया, तो इंटरवल डेटा के बाद अब इसका मतलब हुआ जीरो का मीनिंग हुआ, तभी हम रिलेशनशिप मेजर कर सकेंगे। और रिलेशनशिप मेजर करने के लिए आप रेशो का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आप छोटे छोटे एग्जांपल अब आपको बताता हूँ। नॉमिनल में क्या हुआ जी, जेंडर मेल फीमेल, आई कलर हो गया ब्लू ब्राउन ग्रीन, पॉलिटिकल एफिलिएशन, रिलीजियस एफिलिएशन, नेशनलिटी। ऑर्डिनल में क्या हुआ, ग्रेडिंग कर सकते हैं ABCD। अब जब जज बैठे हैं तो ब्यूटी कंटेस्ट हो रहा है, तो फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। लेकिन ब्यूटी को ऐसे नहीं डिफाइन कर सकते, लेकिन उसमें हम क्या बोल सकते हैं, ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। लेकिन उसके लिए भी आपको क्या करनी पड़ेगी, कोडिंग करनी पड़ेगी। उसी तरह से आपकी ऑनेस्टी है, उसी तरह से आप बता सकते हैं कि ये पुअर है, गुड है, एक्सेलेंट है, स्टडीज़ में कैसा है, तो ये ऑर्डिनल हो गया। उस तरह से इंटरवल लेवल के ऊपर IQ आपका जो है, इंटेलिजेंस कोशेंट आपका, टेम्परेचर जो है। अब इसका मतलब क्या होगा, IQ जीरो है तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास सोचने की शक्ति है ही नहीं है, क्वेश्चन जीरो है, नहीं, जीरो इज मीनिंगलेस। उस तरह से रेशियो लेवल अगेन, हाइट है, वेट है, टाइम है, सैलरी है, एज है। तो अब आपके पास ये डाटा कलेक्शन और सैम्पलिंग टेक्निक्स, मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन में क्या हो सकता है, जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, किसी दूसरे ने उसको कलेक्ट करके रखा है। जैसे मान लीजिए आपके पास न्यूज़पेपर के ऊपर कोई डाटा आ जाता है, उस वहाँ से आप उसको उठा लेते हैं, तो उसको हम सेकेंडरी डाटा बोलते हैं। जो आपने एक एक्सपेरिमेंट करके फर्स्ट टाइम उसको कलेक्ट किया, उसको एक्सपेरिमेंट डाटा करते हैं। जब आप एक स्टडी ऑब्जर्व करते हैं, किसी की बिहेवियर्स ऑब्जर्व कर रहे हैं, किसी की नेचर ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसको हम ऑब्जर्व डाटा करते हैं, जिसके लिए हमें आपको एक सर्वे करना पड़ता है, और सर्वे करने के लिए आपको क्वेश्चनर एक डेवलप करना पड़ता है। जैसे आजकल जो है आपके पास प्रशांत राजपूत की जो डेथ है,
तो रिया से जब सीबीआई वाले इंक्वायरी करते हैं तो उसके लिए जो क्वेश्चंस हैं वो एक उन्होंने क्वेश्चन लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनाई है, और लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनाने के बाद उससे रिप्लाई करते हैं, और रिप्लाई करके उसके बिहेवियर को, उसकी बॉडी लैंग्वेज को भी वो क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो ये कुछ एक डाटा कलेक्शन टेक्निक्स की बात करी है। अब डाटा, जैसे मैंने आपसे कहा कि डाटा तो ऐसा तो नहीं है कि हम सारे सेंसेस मेथड लगाएंगे। तो सैम्पलिंग में हमारी टेक्निक्स होती हैं। रैंडम सैम्पलिंग है कि कोई भी ले लीजिएगा आप। सिस्टमेटिक का मतलब क्या होता है कि आप, जैसे मान लीजिए कि आपके गांव में अब आपको बोला जाता है कि भाई कोई भी 10 घर ले लीजिए, आपने कोई 10 घर ले ली। लेकिन अगर आप ये करते हैं सिस्टमेटिक, भाई पहला पहला घर लो, फिर पांचवा लो, फिर 10वां लो, 15th लो, 20th लो, पांच पांच का गैप में, तो उसको हम सिस्टमेटिक बोलते हैं। स्ट्रेटाफाइड में क्या होगा, मान लीजिए आपके गांव में भी 4 घर एक जगह है, 4 दूसरी जगह है, 4 तीसरी जगह है, 4 पांचवी जगह है, और आपने 5 लोगों के ऊपर स्टडी करनी है, तो आप एक ग्रुप में से एक को लो, उसको हम स्ट्रेटाफाइड और क्लस्टर सैंपलिंग बोलते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है कि डेटा कैसा है और कौन सा सैंपल आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये आपके पास असाइनमेंट है, और आपने ये बताना है कि इसमें कौन कौन सा जो है सैंपल्स ले रखे हैं। तो कुछ है सैंपलिंग आप किताब से भी पढ़ेंगे और फिर हमें आप बताएंगे। अब आते हैं हमारे पास जो ऑब्जर्वेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हैं। ऑब्जर्वेशनल स्टडी क्या होती है, जिसमें आप ऑब्जर्व करते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट विल हैपन, पास्ट में क्या हुआ, और उसके बेस के ऊपर आप डाटा कंक्लूड करते हैं। तो इसके साथ मैंने आपको केस स्टडी दी है, इसको आप पढ़ेंगे। उसी तरह से एक्सपेरिमेंटल स्टडी है जो आपकी लेबोरेटरीज में की जाती है, जैसे आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, या इंडिया टुडे में जो है वो एक मेल फीमेल अंडर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, अ, इस तरह से वो स्टूडेंट्स कैसे कैसे परफॉर्म करता है। तो ये चीज़ भी आपको हमने यहाँ पे केस स्टडी दी है, इसमें आप पढ़ेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स के यूजुअली, जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 तरह के वेरिएबल्स होंगे, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो दूसरे की हेल्प नहीं लेता, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे मान लीजिए, अब मैं अगर आपको ये बोलूं कि आपकी हाइट, सॉरी आपका वेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपकी हाइट पे। जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी वेट बढ़ेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब हाइट क्या है, इंडिपेंडेंट है, वेट क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। दूसरी तरफ अगर आप एडवर्टीजमेंट के ऊपर पैसा खर्च करेंगे तो सेल बढ़ेगी। तो क्या हुआ, एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्च करोगे तो सेल बढ़ेगी। तो सेल किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एडवर्टीजमेंट के ऊपर। एडवर्टीजमेंट क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आपको वहां देखना पड़ता है कि कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है और कौन सा वेरिएबल आपका डिपेंडेंट है। तो इस तरह से अब हम जो अभी तक हमने पढ़ा कि स्टैटिस्टिक्स के 2 एरियाज होते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव होती है, एक इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि पॉपुलेशन क्या होती है और सैंपल क्या होता है, और जो स्टडीज होती हैं वो जनरली हम सैंपल के ऊपर डिस्कस करते हैं। फिर हमने बात करी कि सैंपल जो है वो 4 तरह के होते हैं, रैंडम है, सिस्टमेटिक है, स्ट्रेटिफाइड है, क्लस्टर है। डाटा को हम 2 टर्म में डिवाइड कर सकते हैं, एक क्वालिटेटिव एक क्वांटिटेटिव। और जो मेजरमेंट ऑफ डेटा होता है वो 4 तरह का होता है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो। और जो 2 बेसिक टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडीज होती हैं वो ये ऑब्जर्वेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हो सकती हैं। तो हमारा कंक्लूजन होता है कि द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर मैनी एंड वेरिड, पीपल एनकाउंटर देम इन एवरीडे लाइफ। हम डेली, चाहे वो न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, चाहे हम रेडियो, चाहे हम टेलीविज़न देखते हैं, वहाँ पे इसकी हम एप्लीकेशन करते हैं। सो मुझे लगता है कि जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, जो बेसिक पार्ट है, वो आप कुछ किताबों की हेल्प से और जो मैंने कंसेप्ट आपको क्लियर किए हैं उन दोनों को आप अंडरस्टैंड करेंगे, और जो मैंने असाइनमेंट्स आपको दी हैं उनको आप सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम